ساتھیو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ساتھیو آج ہم جانیں گے کہ ہندوستان بھر میں جو زبانیں موجودہ طور پر ابھی رائج ہیں وہ کہاں سے نکلی ہیں، کیسے نکلی ہیں، ان کا ماخذ کیا ہے، اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے تو دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے۔ ان کا سلسلہ حسب ذیل اپبھرنشوں سے ملایا جا سکتا ہے۔ ساتھیوں ہم نے کیا جانا کہ جدید زبانیں جتنی بھی ہیں ہندوستان بھر کی، ان کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے۔ اب آپ کو ڈائریکٹ یہاں پہ کوشچن بن جائے گا، اسی لائن کو ایز دیٹ از اٹھا کے سوال میں دے دے گا کہ ہندوستان کی جدید زبانیں کس سے نکلی ہے۔ ایک آپشن آپ کو دے دے گا سنسکرت، دوسرا دے دے گا پراکرت، تیسرا دے دے گا اپبھرنش اور چوتھا دے دے گا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جدید زبانیں کس سے نکلی ہیں، تو اپبھرنش سے نکلی ہے۔ یہ لائن اپنے دماغ میں سیٹ کر لیجئے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ان کا سلسلہ حسب ذیل اپبھرنشوں سے ملایا جا سکتا ہے، یعنی جو بھی زبانیں ہیں وہ انہی اپبھرنشوں سے نکلی ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ اپبھرنش؟ سب سے پہلے ہے آپ کو شور سینی اپبھرنش۔ شور سینی اپبھرنش پہلے ہم نے پڑھا تھا شور سینی پراکرت۔ انہی علاقے میں جب اپبھرنش کا دور آتا ہے تو وہ کس میں بدل جاتی ہے؟ شور سینی اپبھرنش میں بدل جاتی ہے، شور سینی اپبھرنش میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہمارا ہے ساتھیو مہاراشٹری اپبھرنش۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا مہاراشٹری پراکرت۔ اب یہ کون سی زبان بدل گئی اپبھرنش کے دور میں؟ تو اسی کا نام پڑ گیا مہاراشٹری اپبھرنش۔ تیسرا ہے ماگدھی اپبھرنش اور اس کے بعد چوتھا ہے ہمارا اردھ ماگدھی اپبھرنش۔ ساتھیوں جن لوگوں نے بہت اچھے سے کلاس کیا ہوگا ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اور ساتھ ہی اس کو ہم نے کیسے کہاں کی زبانوں کا کیا خصوصیت ہے، کس طرح سے وہ ارتقاء میں آئی، یہ ساری چیزیں نمبر وائز پڑھی تھی، اور اسی کا اپبھرنش کے دور میں اس طرح سے نام چینج ہو جائے گا، پراکرت ہٹا کر کے اپبھرنش لگ جائے گا۔ پانچواں کیا ہے ساتھیوں؟ شمال مغرب ہندوستان کی اپبھرنش۔ شمالی مغرب یعنی جو ہے پنجاب وغیرہ کا ایریا ہے، سندھ وغیرہ کا ایریا ہے، تو اس کو کس نام سے موسوم کیا گیا؟ شمال مغربی ہندوستان کی اپبھرنش۔ اب چلیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کس کی کیا خصوصیت رہی ہے، کیسے وہ ارتقاء میں آیا ہے اور کس طرح سے وہ پروان چڑھا ہے، یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھیوں شور سینی اپبھرنش، یہ اس سے کون کون سی زبانیں نکلی ہیں؟ کھڑی بولی یا ہندوستانی، اور ویری امپورٹنٹ کوشچن موجودہ اردو ہندی اسی سے نکلی ہے۔ اب ساتھیوں آپ کو ایک کوشچن کو کئی طرح سے پوچھ سکتا ہے کہ موجودہ اردو ہندی کس سے نکلی ہے۔ وہاں پہ آپ کو آپشن میں دے دے کھڑی بولی، راجستھانی، پنجابی، گجراتی، تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کھڑی بولی سے، یا پھر اس کا ایک لیول اور بڑھا دے گا کہ موجودہ اردو ہندی کس سے نکلی ہے، تو شور سینی اپبھرنش دے دے، ماگدھی اپبھرنش دے دے، اس کے بعد اردھ ماگدھی اپبھرنش دے دے، اور اس کے بعد پانچواں شمال مغربی ہندوستان کی اپبھرنش دے دے۔ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ موجودہ ہندی اردو کس سے نکلی ہے؟ سب سے پہلے کھڑی بولی سے، اگر ایک اسٹیپ اور اوپر جائیں گے تو شور سینی اپبھرنش سے۔ یہ بالکل دماغ میں بیٹھا لینا ہے، کوئی بھی ایگزام اردو کا ہو یہاں یہ کوشچن آتا ہی ہے۔ تو اردو کا تعلق کس سے ہے ساتھیوں؟ کھڑی بولی یا ہندوستانی سے۔ کھڑی بولی نہ دے کر کے اگر ہندوستانی دے دے تو بھی آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے۔ تو موجودہ اردو ہندی، اس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ موجودہ اردو ہندی کس سے نکلا ہے ساتھیوں؟ کھڑی بولی یا ہندوستانی سے، اور اگر ایک اسٹیپ اوپر کر کے پوچھ لے تو شور سینی اپبھرنش سے۔ دوسرے نمبر پہ کون سی زبان ہے؟ راجستھانی۔ دوسرے نمبر پہ کون سی زبان ہے؟ راجستھانی، یہ بھی کس سے نکلی ہے؟ شور سینی اپبھرنش سے۔ تیسرے نمبر پہ ہے مشرقی پنجاب کی زبان، یہ بھی کس سے نکلی ہے؟ شور سینی سے۔ چوتھے نمبر پر ہے
गुजराती और पहाड़ी बोलियाँ, गुजराती और पहाड़ी बोलियाँ यानी गुजरात की जो बोली है वो भी, और जो पहाड़ी बोलियाँ हैं जैसे नेपाल की तरफ की और दूसरी जगह की जो पहाड़े जहाँ ज़्यादा है विंध्याचल वगैरह की, तो वो सारी पहाड़ी बोलियाँ किसके झैल में आ जाएगी साथियों? शोर सीनी अपभ्रंश के झैल में आ जाएगी, या इसकी शाख हो जाएगी, या इसकी किस्में हो जाएगी। किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। गुजराती और राजस्थानी का ताल्लुक शोरशीनी की शक्ल से है जिसे नागर अपभ्रंश भी कहा जाता है। पूछ देगा साथियों कि गुजराती और राजस्थानी का झैल में से, जैसे हमने कल पढ़ा था ना, नागर अपभ्रंश, उपनागर अपभ्रंश, बड़ाचर अपभ्रंश, तो वहाँ आपको क्वेश्चन कन्वर्ट कर देगा और पूछेगा कि गुजराती और राजस्थानी का झैल में से इनमें से किस में है। तो वहाँ आपको याद रखना चाहिए कि गुजराती और राजस्थानी, हमने बताया था ना कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पे हमारा जो है हिंदी का जो लिपि है देवनागरी पड़ा है, तो इसीलिए जहन में सेट होना चाहिए कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे उन्हीं के नाम पे देवनागरी हिंदी की लिपि रखी गई है, रस्मुल ख़त रखा गया है। तो नागर अपभ्रंश से ही किसका ताल्लुक़ है? गुजराती और राजस्थानी बोलियों का ताल्लुक़ है। अब चलिए देखते हैं साथियों अगला, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश ये क्या है? इसका ख़ास मरकज़ मौजूदा बरार था। इसका ख़ास मरकज़ क्या है साथियों? मौजूदा बरार। बरार किसको कहते हैं? महाराष्ट्र के एरिया को कहते हैं। दूसरा क्या है इसमें पॉइंट? संस्कृत में इसी सूबे को महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया। जिस सूबे को पहले महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता था, अब उसी का क्या नाम पड़ गया साथियों? बरार नाम पड़ गया। तो आपको दोनों में से कोई दे दे कि बरार महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का मरकज़ कौन है, तो बरार भी हो जाएगा, या दे दे कि महाराष्ट्र, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए ये याद में रखिएगा, जहन में रखिएगा बल्कि। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों हमारा मागधी अपभ्रंश। क्या है हमारा? मागधी अपभ्रंश। इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? इसका इलाका बहुत वसी था। इसका इलाका क्या था साथियों? बहुत वसी था। इसका इलाका बहुत वसी था। मुख्तलिफ मकामात पर इसके मुख्तलिफ नाम पड़ गए। इसका इलाका बहुत वसी था, कई जगहों पे ये बोली जाती थी और हर जगह पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। देखते हैं कहाँ कहाँ बोली जाती थी। बंगाल में बोली जाती थी, और बंगाल में इसका क्या नाम था साथियों? पराचे। पराचे बंगाल में बोली जाती थी और वहाँ इसका क्या नाम था? पराचे। गोर और ढकई भी वही नाम पड़ा। बंगाल में क्या क्या पड़ा? पराचे, गोर और ढकई, जिससे कि मौजूदा बंगाली और आसामी निकली है। बंगाल में इसका क्या नाम पड़ा? पराचे, गोर, ढकई। और इससे कौन कौन सी ज़बानें वजूद में आई हैं मौजूदा? बंगाली और आसामी। एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, दिमाग पे एकदम बोलते ही जहन में आ जाना चाहिए कि जब मागधी अपभ्रंश बंगाल में बोली जाती है, वहाँ ये परवान चढ़ती है, तो वहाँ इसका नाम पड़ता है पराचे, गोर, ढकई। और कौन कौन सी ज़बान इससे पैदा हुई है मौजूदा? तो वो हो जाएगी आपकी बंगाली और आसामी। चलिए देखते हैं उड़ीसा में इसको किस नाम से जाना गया। उड़ीसा में इसका नाम अतकली पड़ा। उड़ीसा में इसका नाम अतकली पड़ा, जिससे कि मौजूदा ज़बान उड़िया ने जन्म लिया। उड़ीसा में इसका नाम अतकली पड़ा, और उसी अतकली से कौन सी ज़बान पैदा हुई साथियों? उड़िया, उड़ीसा की ज़बान। उसके बाद बिहार की तमाम बोलियां इसी के तहत आती है। अब साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI, इसको टिक कर लीजिए कि बिहार की, ये क्वेश्चन आता है, बिहार की तमाम बोलियां किसके झैल में आएंगी? तो क्या जवाब होना चाहिए साथियों? मागधी अपभ्रंश। बिहार की तमाम बोलियां किसके झैल में आएंगी साथियों? मागधी अपभ्रंश के झैल में आएंगी। और बिहार में कौन कौन सी बोली है? तो बिहार में मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये 3 बोली है। लेकिन बिहार की जो मगही जो है ना, ये मागधी की बिगड़ी हुई शक्ल है। बिहार में बोलते हैं ना हम लोग मगही बोल रहे हैं, हमारा क्या है बोलचाल का, ये बोलचाल की ज़बान मगही। मगही कहाँ से निकला है? मागधी बिगड़ते 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 कहाँ पहुँच गया? मगही पर पहुँच गया। तो आपको ऐसे भी याद रह जाएगा कि बिहार की जो ज़बान है वो किससे निकली है साथियों? तो मागधी अपभ्रंश से निकली है, और वही बिगड़ के क्या बन गई? मगही बन गई। चलिए अब आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश ये कहाँ बोला जाता है साथियों? पूर्वी हिंदुस्तान में, यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सारी जो ज़बानें हैं जिस इलाके में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में, अवध में, इलाहाबाद वगैरह में, तो वहाँ की ज़बान को किस नाम से जाना गया? अर्धमागधी अपभ्रंश के नाम से जाना गया। वहाँ की ज़बानों को किस, पूर्वी हिंदुस्तान की जो ज़बानें थी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी वगैरह, इसको अर्धमागधी के नाम से जाना गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें, इसमें क्या क्या जानना है हमें कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की प्राकृतें और अपभ्रंश अभी तक तारीख़ी धुंधले में है। इनका नक्शा हस्ब ज़ैल से मिलाया जा सकता है। इनका नक्शा हस्ब ज़ैल से हो सकता है। कहा जा रहा है ना कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में कौन सी ज़बानें अपभ्रंश के दौर में बोली गई, उसका तारीख़ में तफसील से कोई ज़िक्र नहीं मिलता है। एक कयास लगाया जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है, कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये बड़ाचर और केकई इसकी शाख हो सकती है। लेकिन तारीख़ में चूँकि वहाँ की ज़बानें बहुत ज़्यादा परवान नहीं चढ़ी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ कुछ ऐसा अदब का काम हुआ नहीं था, कोई भी चीज़ कैसे जाना जाता है? जब वहाँ अदब लिखा जा रहा हो। बाद में वही अदीब सब जब उन किताबों का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि अच्छा यहाँ की ज़बान ऐसी थी, यहाँ की संस्कृति ऐसी थी, यहाँ का रस्म व रिवाज इस तरह का था, यहाँ की रिवायत ऐसी थी। तो ये सब किससे पता चलता है? अदब से। जहाँ अदब ज़्यादा तख्लीक होगा ही नहीं तो वहाँ के बारे में तारीख़ क्या हो जाएगा? धुंधले में पड़ जाएगा। तो यही कुछ हाल किसका हुआ था साथियों? शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानों का हुआ था कि जहाँ के बारे में तारीख़ में तफसील से मिलता नहीं है। कयास लगाया गया है कि बराचर अपभ्रंश और केकई अपभ्रंश हो सकता है। और केकई अपभ्रंश, बराचर अपभ्रंश कहाँ राइज होगी? तो सिंध में होगी। और केकई अपभ्रंश ये कहाँ होगी? तो लहिंदा में होगी। लहिंदा देश का कदीम नाम क्या था? केकई था। तो ये लहिंदा जो है सिंध के आस पास का एरिया, उससे थोड़ा सा हट के, तो उस वहाँ कौन सी ज़बान हो गई? केकई। चूँकि जो राजा भरत जो है ना उसी एरिया में मुक़ीम थे उस ज़माने में जब आर्या आए थे, इससे उस इलाक़े का नाम जो है उनकी पत्नी के नाम पे, उनकी बीवी के नाम पे पड़ गया। तो इसलिए ये किस तरफ की बोलियां होंगी? तो केकई, और केकई लहिंदा की है और बराचर सिंध की है। तो यहाँ तक हमारा बस्ती हिंद आर्याई ख़त्म हो जाता है। अब कल से एक दूसरे नए टॉपिक की तरफ हम पहुँचेंगे और आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों। चूँकि आपको ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता है, गहरे डिटेल में जाके ही पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये चीज़ें मुफीद साबित होगी। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।